شاد ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب وزیر اعظم ہاؤس آمد پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ، خیر سگالی کے کلمات کا تبادلہ، دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ ایران کے صدر کو مسلح افواج کی طرف سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مسعود پزشکیان کا گارڈ آف آنر کا معائنہ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور وفد کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمان سے اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف کرایا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اپنے وفد کے ارکان کا تعارف کرایا۔ ایران کے صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے سبززار میں پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کے درمیان ملاقات۔ دو طرفہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور پاکستانی قیادت کے ساتھ باہمی گفتگو کے لیے دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایران کے ساتھ تجارتی حجم کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تجارت سمیت مختلف امور پر مفید بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی ایرانی صدر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی وزارت خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پرتپاک استقبال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کے درمیان ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ایرانی ہم منصب کی ملاقات۔ دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ خواجہ محمد آصف کا مشترکہ سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دفاعی سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ ایرانی وزیر دفاع کا پرتپاک استقبال پر اظہار تشکر۔ ایران کی وزیر روڈز اینڈ اربن ڈیولپمنٹ فرزانہ صادق کی وفاقی وزراء سے ملاقات۔ گوادر چابہار کے راستے دو طرفہ تعاون۔ زاہدان سے کوئٹہ کے موجودہ روٹ سمیت زمینی، فضائی اور بحری روابط۔ فریقین کی مشترکہ ورکنگ گروپس بنانے پر گفتگو۔ پاک ایران موجودہ ٹریفک کے حجم اور دونوں اطراف ایک جیسی سہولت دینے پر بات چیت۔ ملاقات کرنے والوں میں وفاق کے وزراء عبدالعلیم خان، جام کمال خان اور محمد حنیف عباسی شامل تھے۔
पाकिस्तान और ईरान का सालाना तिजारत $8 अरब तक पहुंचाने का हदफ। वफाकी वजीर जाम कमाल खान और मोहम्मद आताबुक का दो तरफा तिजारत को नई जहद देने पर इत्तेफाक। दोनों वज़राए तिजारत का बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका इक्तसादी कमीशन इजलास जल्द मुनाकिद करने पर इत्तेफाक। इलाकाई तिजारत वक्त की ज़रूरत है, हमसाया ममालिक के साथ रवाबित अहम है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की आमद पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी को खैर मकदमी बैनर्स, पोस्टर्स ईरान और पाकिस्तान के परचमों से सजा दिया गया। वफाकी तरक्याती इदारे की जानिब से इस्लामाबाद में ईरानी सदर के दौरे के मौके पर तारीखी तैयारियां, दोनों मुल्कों के करीबी बरादराना ताल्लुकात की अक्कास। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक्तसादी ताउन के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनिंग कंपनी सनर्जी को का अमरीकी कंपनी वाइटल से मुआहदा तय पा गया। मुआहदे से पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी और पाकिस्तानी बरामदात पर आयद महसूलात में कमी होगी। मकसद सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को आगे बढ़ाना है। PF versus IF 6-0. मार्का हक में शानदार फतह, जश्न आज़ादी मनाने का अंदाज निहायत फातिहाना। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फिजाइया की कारकर्दगी ने आज़ादी के जश्न को चार चांद लगा दिए। शाहीनों के महिरुल कोल कारनामे आज भी आलमी मीडिया की शहसुर्खियों की जीनत। भारतीय गुरूर राफेल कैसे गिराए, कहानी सामने आ गई। मोदी ने इक्तदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवाई। भारतीय इंतखाबी निजाम अपोजिशन लीडर के हाथों बेनकाब। राहुल गांधी का लोकसभा इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर धांधली का इल्जाम। भारत का इंतखाबी निजाम पहले ही मर चुका है, राहुल गांधी। यौम आज़ादी अज़्म नौ का दिन, ये हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। इसी दिन हमारा एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का ख्वाब हकीकत में ढाला। पाकिस्तान की बुनियाद कुर्बानी, जद्दोजहद और ईमान पर रखी गई। 1947 के बाद पाकिस्तान का कायम रहना महज जज्बे की बदौलत मुमकिन हुआ। कुर्बानियों से जुड़ी पाकिस्तान की कहानी, कर्नल रिटायर्ड GB शाह की ज़बानी। गजा में इजरायली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की बमबारी। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहीद होने वालों में ज्यादातर इमदाद के मुंतजर फलस्तीनों की है। गजा में कहत की सूरत हाल ताहाल संगीन। पाका कशी से मजीद 7 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। मगरबी किनारे के इलाके नाबलूस में यहूदी आबादकारों के मकामी आबादी पर हमले, 1 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी। वादिय नीलम में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकारीब जारी। पहले रोज एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन खेलों के मुकाबले हुए। इख्तितामी तकरीब 13 अगस्त को केल में होगी। पोलो फाइनल, पैराग्लाइडिंग और इनामात तकसीम किए जाएंगे। जश्न आज़ादी पर तकरीबात का मकसद नौजवानों में हुब्बुल वतनी और सेहतमंद सरगर्मियों का फ़रोग़ है। लॉडरहिल, फ्लोरिडा में दूसरा T20 सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्टइंडीज की 2 विकेटों से कामयाबी। वेस्टइंडीज ने 134 रन का हदफ 20वें ओवर की आखिरी बॉल पर 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। आखिरी बॉल पर 3 रन दरकार थे। जेसन होल्डर ने चौका लगाकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और टोरंटो में मास्टर्स 1000 कैनेडियन ओपन, रोज के गिरन खिचनोव क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। खिचनोव ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। अमेरिका के एलेक्स मिचेल्सन ने हमवतन लर्नर टाइन को हराकर लास्ट 8 में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में खिचनोव और मिचेल्सन मद्दे मुकाबिल होंगे।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ हुमा मलिक। खेलों की खबरों में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पुज़ेशकियान के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरकजी दरवाजे पर उन्हें गर्म जोशी से खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैर सगाली के कलमात का तबादला हुआ। इस्तकबाली तकरीब के आगाज पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से अपने काबीना अरकान और वफ्द का तारुफ कराया। सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपने वफ्द का तारुफ करवाया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह वफ्द ईरानी सदर के वफ्द में शामिल हैं। पाकिस्तान और ईरान की क़यादत के दरमियान हालिया महीनों में आला सतह राबतों में इजाफा हुआ। सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे से दो तरफा ताउन की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान और ईरान बरादर हमसाया मुल्क है जिनके ताल्लुकात दरीना और एतमाद के रिश्ते पर कायम हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी रवाबित पूरे खित्ते के लिए मुफीद हो सकते हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाजार में पौधा भी लगाया। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की और मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। पाक ईरान बाहमी और तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को दोहराया और कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफ़ती वरसे, ईमान की मजबूत बुनियादों पर कायम है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हुए दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और पाकिस्तानी क़यादत के साथ बामानी गुफ्तगू के लिए अपनी दिलचस्पी का इज़हार किया ताकि दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सियासी और माशी रवाबित मजीद मुस्तहकम हों। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ारत ख़ारजा आमद पर मोहम्मद इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इलाक़ाई इस्तेहकाम, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन से मुतल्लिक़ उमूर पर बातचीत भी की गई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। अहम शोबों में दो तरफा रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पायदार मुज़ाकरात की अहमियत, सलामती के उमूर और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। We are brothers and it is always a pleasure to meet. We discuss not only our bilateral matters but also the regional and the international. We have discussed Gaza, we have discussed the regional issues, we have discussed the economic side, how to expand and take it to the decision which was taken by His Excellency the Irani President and Prime Minister of Pakistan to take it to the level of $10 billion. So, we discussed everything under the sun, and it is always a pleasure to meet my brother. So, we always work together and we remain closely in touch with each other. नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार के ईरानी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुफीद बातचीत होगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ईरान के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। We have a history and we stood by our brother Iran, and we will continue to support Iran in the economic, trade and other field. I think President of Iran, his statement that he intends, and the same mission is of Prime Minister Shehbaz Sharif, to take the trade volume between the two countries to $10 billion is very heartwarming, and it is the need of the hour
You see, we should expand our economic activity as much as we can, because it will bring our economic cooperation together. Will bring our people further close. So I think I had a wonderful call on His Excellency the President. We have a full day of events. Mr. President will be shortly in Prime Minister House, where he would be awarded the welcome ceremony, followed by there would be restricted meetings, and then there would be delegation level talks. There's a business gathering here, which Mr. President will chair, and he would also be hosted by Prime Minister for lunch, and President will host for dinner. So you see, he will have a very busy day, whole day till 10 p.m. Thank you very much. Thank you. वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरज़ादा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सलामती, इंसदार दहशत गर्दी की कोशिशों और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ईरान की मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहा और मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफाई सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर दिफा ने पुरतबाक इस्तकबाल पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़दार और एतमाद पर मबनी दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान ईरान दिफाई ताल्लुकात के रोशन मुस्तक़बिल और खित्ते की खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का भी इआदा किया। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल खान और मोहम्मद हनीफ अब्बासी से ईरान की वज़ीर रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट फरजाना सादिक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन तेज़ पेशरफ्त के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने समेत पाक ईरान मौजूदा ट्रैफिक के हजम और दोनों अतराफ एक जैसी सहूलत देने पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ईरान को इसराइल के खिलाफ सुरखरू होने पर मुबारकबाद देते हैं। ईरान की कामयाबी सारे आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र और मुसरत का मकाम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान दोनों ने मजबूती से एक दूसरे का साथ दिया। इस मार्के ने पाकिस्तान और ईरान को मज़ीद नज़दीक कर दिया। इस सुनहरी मौके का फ़ायदा उठाकर बाहमी ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने ईरानी वज़ीर को अक्टूबर में वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देते हुए कहा कि तिजारत में इजाफे के लिए ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी राबते ज़रूरी हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने पाक ईरान तिजारती उमूर में इजाफे पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए ट्रेड मार्केट साबित हो सकते हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के रेल मंसूबे का असर नौ जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान से ज़ाहदान के रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने के साथ तादाद में इजाफा करेंगे। मुलाकात में ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक का कहना था कि इजरायली जहरीत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ देने पर मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के माबैन गाड़ियों की आमदरफ्त में इजाफा होना चाहिए। दोनों मुल्क ज़ाहदान से क्वेटा की मौजूदा रूट में जिद्दत ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि गवादर चाबहार के रास्ते भी दो तरफा ताउन में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान और ईरान ने सालाना तिजारत का हजम $10 अरब तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ईरान के वज़ीर सनअत और तिजारत डॉक्टर सैयद मोहम्मद अताबिक के दरमियान इस्लामाबाद में आला सतह मुज़ाकरात हुए। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान ने कहा कि जोग्राफियाई क़ुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर देते हुए मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन इजलास जल्द मुनक़िद करने पर इत्तिफाक किया। ईरानी वज़ीर तिजारत ने कहा कि बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तिजारती ताउन और दोनों ममालिक के ताजरों के दरमियान एतमाद नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी रवाबित खित्ते में इस्तेहकाम का बायस बनेंगे। दोनों रहनुमाओं ने बरामदात बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात पर जोर दिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पूरी कौम ईरानी सदर को खुशामदीद कहती है। उन्होंने कहा कि ईरान के सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। उनका यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। न सिर्फ जो तजारती तौर पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से और पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के हवाले से ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो ईरानी प्रेसिडेंट को वेलकम करती है। उनके डेलीगेशन समेत वो भी यहाँ पे एक बहुत मसरूफ़ दिन गुजारेंगे, जिसमें वो बायलैटरल मीटिंग्स भी हैं, जिसमें एक दौराना और एक इशाइया भी दिया जा रहा है।
ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पुज़ेशकियान के दौरा पाकिस्तान से बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद बरादराना, इस्लामी अखुव्वत और मुश्तरका सकाफत पर कायम है। ताहम हालिया इलाकाई और आलमी सूरत हाल के तनाजुर में ये ताल्लुकात नई जहत पर पहुँच गए हैं। ईरान की जानिब से इसराइल के साथ तनाज़े में पाकिस्तान के असूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को सराहा गया है और ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के इखलास और हमायत को नाकाबिले फरामोश करार दिया है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, जिनमें पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा, बाहमी तिजारत को $10 अरब तक बढ़ाने और सरहदी सलामती के मामलात पर करीबी ताउन शामिल है। Pakistan and Iran have deep-rooted cultural ties, historical relations, and we have decided to transform these relations into a very proactive cooperation in various fields of life. दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मुश्तरका फोरम्स पर बातचीत जारी है, जिनका मकसद सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाना, स्मगलिंग की रोकथाम और मुआशी सरगर्मियों को फरोग देना है। पाकिस्तानी ईरान को अपना दूसरा घर समझते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती सिर्फ रस्मी ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में पेवस्त है। इसराइल ईरान की जंग भी बंद हो गई है। ईरानी कौम है, उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ वो झुके नहीं। ईरान ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तान के अवाम का जिस खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है, ये मैं नहीं समझता कि असर हाज़िर में इसकी कोई और दूसरी नज़ीर मिलती है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बढ़ता हुआ एतमाद न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत दे रहा है बल्कि ये मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद, हम आहंगी और बाहमी ताउन के लिए भी एक रोशन मिसाल है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पुज़ेशकियान के दौरा पाकिस्तान, वफाकी दारुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी को खैर मकदमी बैनर्स, पोस्टर्स ईरान और पाकिस्तान के परचमों से सजा दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की विजन और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की क़यादत में CDA ने ईरान के सदर के हालिया दौरे पाकिस्तान के मौके पर इस्लामाबाद को खूबसूरती, मेहमान नवाजी और तंजीमी महारत का अमली नमूना बनाने के लिए भरपूर तैयारियां की। शहर को रंग बिरंगे परचमों, जदीद लाइटिंग और दिलकश तज़ीन व आराइश से सजाया गया। सब्ज़जारों की बहाली और फूलों की सजावट ने दारुल हुकूमत के हुस्न को मजीद निखारा। ये दौरा पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ और पाकिस्तान की इलाकाई सिफारतकारी की अलामत बन गया। CDA की ये काविशें इस्लामाबाद को दुनिया के खूबसूरत और मिसाली दारुल हुकूमतों में शामिल करने की समत एक अहम कदम है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम तिजारती मुआहदा तय पा गया है, जिससे दो तरफा ताल्लुकात में नुमायां पेशरफ्त हुई है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी सेनर्जिको ने अमरीकी कंपनी विटोल से 10 लाख बैरल अमरीकी खाम तेल की खरीदारी का मुआहदा कर लिया है और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला अमरीकी तेल दरामदी मुआहदा है। पहला कार्गो अक्टूबर 2025 में कराची पहुंचेगा, जिससे तेल की दरामदात में अमरीकी हिस्सा भी शामिल होगा और पाकिस्तान की तेल की ज़रूरियात मिडल ईस्ट पर इन्हिसार कम होगा। अमरीकी सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा, जिससे मुस्तकबिल में तवानाई, मादनियात और IT समेत कई शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। पाकिस्तानी मसनूआत को अमरीकी मंडियों में रसाई और बरामदात में महसूलात में कमी मुतवक्के है, जिससे तिजारती खसारे में कमी लाकर मुआशी तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं। सेनर्जिको कंपनी यौमिया 1,26,000 बैरल खाम तेल प्रोसेस करने की सलाहियत रखती है और मुस्तकबिल में दूसरे ऑफशोर टर्मिनल की तनसीब पर भी काम कर रही है। ये मुआहदा कई माह की मुज़ाकराती कोशिशों के बाद अमल में आया, जिसे गैर मामूली सिफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। SIFC की कोशिशों से ये मुआहदा पाकिस्तान के मईशत के लिए सरमायाकारी के फ़रोग़ और बाहमी ताउन का नया बाब साबित होगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस मुआहदे से पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ अमरीकी सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बाहमी ताल्लुकात में भी बेहतरी मुतवक्के है। भारत की जमहूरियत और इंतखाबी शफाफियत एक बार फिर आलमी बहस का महवर बन गई, जब अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर 2024 के लोकसभा इंतखाबात में 100 से ज्यादा नशिस्तों पर बदतरीन धांधली का इल्जाम आयद कर दिया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में सालाना लीगल कॉन्क्लेव से खिताब में कहा कि उनके पास ऐसी दस्तावेजी और डेटा पर मबनी सबूत मौजूद हैं जिनका इजरा एटम बम साबित होगा और पूरा इंतखाबी निज़ाम हिल कर रह जाएगा।
ان کا کہنا تھا کہ اگر صرف 15 سے 20 نشستوں پر ہی دھاندلی نہ ہوتی تو آج مودی وزیر اعظم نہ ہوتے۔ گاندھی نے مزید انکشاف کیا کہ ان کی جماعت نے صرف ایک حلقے کی ووٹر لسٹ کی چھان بین کی تو 6.5 لاکھ ووٹرز میں سے 1.5 لاکھ جعلی نکلے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن اب غیر جانبدار ادارہ نہیں ہے بلکہ مودی حکومت کا کٹ پتلی ہے۔ کئی سیاسی رہنما اور مبصرین نے بھی ان الزامات کی تائید کی اور کہا کہ انتخابی سسٹم مر چکا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت کا دفاع کرنے والا ادارہ اب موجود ہی نہیں۔ ادھر الیکشن کمیشن نے ان الزامات کو گمراہ کن اور بے بنیاد قرار دیا، جبکہ حکومتی وزراء نے راہل گاندھی کو اپنے مبینہ ایٹم بم ثبوت فوری طور پر سامنے لانے کا چیلنج کیا ہے۔ بھارت میں سب سے بڑی جمہوریت پر چھائے یہ سوال اب بھارتی عوام اور عالمی برادری دونوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بنو پولیس چوکی فتح جیل میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے حملہ ناکام بنانے اور 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہید اہلکار روح نیاز کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہوئے سید محسن نقوی نے زخمی اہلکاروں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اور کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ممبر قومی اسمبلی چودھری ناصر اقبال وصال نے قادر آباد میں نادرا دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری ناصر اقبال وصال کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کو شناختی کارڈ، پاسپورٹ، بجلی اور سوئی گیس سمیت تمام بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ قادر آباد میں نادرا کے نئے دفتر کے قیام سے علاقے کے ہزاروں افراد کو شناختی کارڈ بنوانے کے لیے منڈی بہاؤالدین اور دیگر دور دراز جگہوں پر نہیں جانا پڑے گا اور لوگوں کو ان کے گھر کے قریب ہی شناختی کارڈ بنوانے کی سہولت حاصل ہوگی۔ بین الاقوامی تعاون کی ایک شاندار مثال، پاکستان نے ایتھوپیا کی ایک دن میں 70 کروڑ پودے لگانے کی تاریخی مہم میں شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد فیصل راؤ۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر ابی احمد کی گرین لیگیسی انیشیٹو کے تحت اس مہم کو شروع کیا گیا۔ مہم کا مقصد ماحولیاتی نظام کی بحالی، کاربن کے اخراج اور مٹی کے کٹاؤ میں کمی لانا ہے۔ اسلام آباد میں ایتھوپین سفارتخانے میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک، پاکستان میں تعینات ایتھوپیا کے سفیر اور دیگر ممالک کے سفیروں نے پودا لگا کر مہم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ ہمیں ماحول کو سرسبز بنانے کے لیے شجرکاری پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ ماحول کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر نے ایتھوپیا کے سفیر کے ماحول دوست اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے ایتھوپیا کے وزیر اعظم کی دور اندیشی اور عالمی ماحولیاتی ایجنڈے میں ان کی مثالی کردار کی تعریف کی۔ پاکستان میں تعینات ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بیکر نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا بہادری سے سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان کی اس مہم میں شرکت نہ صرف ایتھوپیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی علامت ہے بلکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جدوجہد میں تنہا نہیں ہے۔ پاکستان اور ایتھوپیا کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں اور دونوں ممالک موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ محمد فیصل راؤ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اور نماد آرٹ گیلری کے زیر اہتمام نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ کریں گی صدف افضل۔ تصویر ایک زبان ہے جو لفظوں کے بغیر بھی دل کی بات کہہ جاتی ہے۔ پی این سی اے میں منعقدہ نمائش میں نامور فنکاروں کے تخلیقی شاہکار پیش کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر اکاماتسو سوئیچی نے کیوریٹر نگین حیات کے ہمراہ نمائش کا افتتاح کیا اور آرٹسٹوں کے کام کو خوب سراہا۔ فنکاروں کی پینٹنگز اور تصویریں شائقین کی توجہ کا خصوصی مرکز رہے۔ سیف الملوک ٹاپک ہے، لیک سیف الملوک جو جھیل ہے، اور پاکستان اتنا حسین ہے ہمارا، ڈفرینٹ آرٹسٹ کو لیا گیا ہے جو اس ٹاپک پہ کیوریٹ کر کے اپنا نظریہ، اپنا ویژن شیئر کر رہے ہیں۔ فن کی دنیا سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے نمائش میں شرکت کی۔ جو اپنے ریجن کے سمبلز کو ڈسکور کرنا، اپنے ریجن کی فارمز کو، کلرز کو، شیپس کو، اور جو ہمارے ارد گرد جو فنومینا ہے ریجنل، اس کو ڈسکور کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اور پھر جب میں اس کو ریپروڈیوس کرتی ہوں تو یہ دس از مائی پرسنل ایکسپریشن۔ جو میں نے نومیڈ گیلری میں جو ایگزیبیشن کی ہے وہ بیس کرتی ہے ہماری جو فوک اسٹوری ہے جھیل سیف الملک کی، کہ ایک پرنسس کی جو اسٹوری تھی کہ وہ اپنی ایک فیری سے جو ہے لو کرنے لگ گئے تھے اور اس میں پھر وہ کنٹینیو نے لائف کی،
फिर उनकी लाइफ में जो एक कहना चाहिए एक विलन टाइप के जो है एक देव भी आ गए थे, तो वो उसी पर बेस करता हुआ मेरा सारा काम है. This one's about self-identity, self-expression, trying to make sense of the environment around them. And each artist has come up with something truly amazing and so different if you look around. नुमाइश 8 अगस्त तक जारी रहेगी. ये नुमाइश तस्वीरों का मजमुआ नहीं, बल्कि हर तस्वीर में एक कहानी, एक जज्बा और एक ख्याल छुपा हुआ है. सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद. अगस्त पाकिस्तान की तारीख का वो दरख्शां दिन है जब एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का ख्वाब ताबीर में ढला. यौम आज़ादी न सिर्फ खुशी का दिन है बल्कि कुर्बानी, जदोजहद और ईमान की वो यादगार अलामत भी है जिसने लाखों लोगों को एक मंजिल पर यकजा किया. तहरीक आज़ादी के तनाजुर में रिटायर्ड कर्नल GB शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े पर ही नहीं बल्कि बेमिसाल कुर्बानियों, खालिस जज्बे और गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर रखी गई. कर्नल GB शाह के मुताबिक 1947 के बाद का दौर पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल तरीन मरहला था. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मफलूज हो चुकी थी, अहम अफसरान हिंदुस्तान चले गए थे और रियासत को शदीद माली और इंतजामी मसाइल का सामना था. इस नाजुक वक्त में वो मुहाजिरीन जो आला ओहदों पर फाइज थे पाकिस्तान आकर कम तनख्वाहों पर खिदमात अंजाम देने को तैयार हुए ताकि नई रियासत को इस्तेहकाम मिले. उन्होंने कहा कि यही इसार, खुलूस नीयत और हुब्बुल वतनी पाकिस्तान की असल ताकत बने. उन्होंने जब कहा ना कि हमारी तनख्वाह वहाँ पे 600 ऐसे मिसाल के तौर पर, और जब बाद में पता चले कि वो वाकई 600 नहीं थी बल्कि 700 थी, वो कम बताते थे क्योंकि वो कहते जी कोई हुकूमत को फायदा हो, हमारे मुल्क को फायदा हो. तो ये जो जज्बा था इसने ये चलाया मुल्क को. नीलम वैली के खूबसूरत इलाके केल में जश्न आज़ादी 2025 और मार्का हक की तकरीबात का बावकार आगाज हो गया. इफ्तिताही तकरीब में आला अस्करी और सिविल हुक्काम, मौज़िज़ीन इलाका और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की. तकरीबात का आगाज खेलों के मुकाबलों से हुआ जिनमें नौजवानों ने भरपूर जोश व जज्बे के साथ हिस्सा लिया. एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे मुकाबले मकामी सतह पर तवज्जो का मरकज बने. 1 से 14 अगस्त तक वैली के स्कूलों और कॉलेजेस में तकरीरी मुकाबले, क्विज, मुसव्वरी और दीगर तख्लीकी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी जिनका मकसद तलबा और तालिबात में कौमी जज्बे और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है. इख्तितामी तकरीब 13 अगस्त को केल में होगी जिसमें पोलो फाइनल, पैराग्लाइडिंग और इनामात की तकसीम शामिल होगी. इन तकरीबात का मकसद नौजवानों में हुब्बुल वतनी, सेहतमंद सरगर्मियों का फरोग और कौमी त्यौहार के जज्बे को नई तवानाई देना है. क़याम पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लेने वाले कारकुन चौधरी खुर्शीद अहमद सिंधु की कहानी उन्हीं की जुबानी जानिए. रिपोर्ट कर रहे हैं सांगला हिल से मोहम्मद अनवर अंसारी. यौम आज़ादी के मौका पर वतन अजीज पाकिस्तान के क़याम की तारीख एक बार फिर ताज़ा हो जाती है जब उस दौर के चश्मदीद गवाह अपनी यादों के दरीचों से हमें उन अयाम की झलक दिखाते हैं. चौधरी खुर्शीद अहमद संधू जिन्होंने अपनी जिंदगी की 100 से ज़ायद बहारें देखी और क़याम पाकिस्तान की जदोजहद में न सिर्फ शिरकत की बल्कि बेपनाह कुर्बानियां भी दी. क़याम पाकिस्तान से कबल भारत के गाँव मचरावा तहसील बटाला जिला गुरदासपुर से था. नौजवानी में शादी की जिंदगी गुजार रहे थे कि बरसगीर के तारीखी हिजरती अलमिया ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी. पाकिस्तान बनते ही वो 5 खानदानों पर मुश्तमिल काफिले के साथ सांगला के नवाही गांव बलेर को अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाया. उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और दीगर कायदीन तहरीक पाकिस्तान के जलसों और कार्नर मीटिंग में भी शिरकत की. 2024 में सिख दोस्तों की फरमाइश पर भारत में अपने आबाई गांव का दौरा किया जहां से खानदानों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया. अनवर अंसारी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सांगला हिल. मुल्क भर की तरह जिला चिन्योट में भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जारी हैं. चिन्योट से देखिए हमारे नुमाइंदे राना आरिफ की रिपोर्ट.
یوم آزادی قریب آتے ہی ملک بھر کی طرح ضلع چنیوٹ میں بھی سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں، دیدہ زیب بیجز، ٹوپیاں اور بچوں کے کپڑوں کے سٹال سج گئے۔ شہریوں نے خریداری کے لیے ان سٹالوں کا رخ کر لیا۔ میں اپنے لیے چوڑیاں اور بیگ خریدنے آئی ہوں۔ میں 14 اگست کے لیے کپڑے خریدنے آئی ہوں۔ میں گھر کے لیے جھنڈیاں خریدنے آئی ہوں اور ہم 14 اگست بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ میں اپنے لیے جھنڈیاں خریدنے آئی ہوں۔ میں جھنڈے اور بیگ خریدنے آیا ہوں، یہاں پر مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے بچے بڑے سب ہی اپنی من پسند خریداری کرنے میں مصروف ہے۔ کوئی جھنڈے اور جھنڈیاں خرید رہا ہے، کوئی بیجز اور ٹوپیاں۔ شہری 14 اگست کو شاندار انداز میں منانے کے لیے پرعزم ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ وطن عزیز کی دفاع کو اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم رکھیں گے۔ رانا عارف، PTV نیوز، چنیوٹ۔ ضلع انتظامیہ جہلم کی جانب سے مارکہ حق بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی اور جشن آزادی کی 14 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ 120 فٹ لمبے اور 80 فٹ چوڑے قومی پرچم کی رونمائی کی خصوصی تقریب گورنمنٹ تبلیغ الاسلام ہائی اسکول میں منعقد ہوئی۔ نعیم اختر بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ وطن سے محبت اور قومی جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے جہلم میں مارکہ حق اور جشن آزادی کی 14 روزہ تقریبات کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ تبلیغ اسلام ہائی اسکول میں 120 فٹ لمبے اور 80 فٹ چوڑے قومی پرچم کی رونمائی کی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی مشیر صحت پنجاب میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر محمود کیانی تھے، جنہوں نے قومی پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر قومی ترانہ پیش کیا گیا اور جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہماری جو قوم ہے، جس طرح پہلے اس نے اتحاد کی جو ہے ایک بڑی زبردست مثال انہوں نے پیش کی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ اس ملک کے لیے وہ اپنی جان دینے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے اور اکٹھے مل کے محنت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو مارکہ حق تھا اس میں پاکستان نے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی۔ تقریب میں ذیلی افسران، اساتذہ، طلبہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جو سبز ہلالی پرچم کے ساتھ اپنے جذبے کا اظہار کر رہے تھے۔ مختلف تقریبات اس 2 ہفتے کے دورانیے میں رہیں گی، اس میں بچے، بوڑھے، جوان اور ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے میری گزارش ہوگی کہ بھرپور طریقے سے اس جشن آزادی میں شامل ہوں۔ یہ صرف سبز اور سفید رنگ نہیں، یہ ہمارا عزم، ہمارا ایمان اور ہماری پہچان ہے۔ ہمارے یہاں اسکول میں سب سے بڑا جھنڈا لہرایا گیا جو ہمیں حب الوطنی کا جذبہ دیتا ہے۔ پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایت پر جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر میں قومی پرچموں کی بہار ہے۔ سرکاری اور نجی عمارات سبز ہلالی پرچم سے سجی ہوئی ہیں۔ یہ پرچم نہ صرف حب الوطنی کا مظہر ہے بلکہ نوجوان نسل میں قومی تشخص اور اتحاد کے جذبے کو فروغ دینے کی ایک خوبصورت کاوش بھی ہے۔ نعیم اختر بھٹی، PTV نیوز، جہلم۔ ننکانہ صاحب میں جشن آزادی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے جاوید احمد مافیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے ضلعی افسران کے ہمراہ مانگٹا والا روڈ پر پودے لگا کر جشن آزادی شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اگست کے مہینے میں 20,000 سے زیادہ نئے پودے لگائے جائیں گے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تابع ہم کم از کم 20,000 پلانٹس جن کی ہائٹ 8 سے 10 فٹ ہو وہ اسی اگست کے مہینے میں لگائیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ننکانہ صاحب آزادی حاصل کرے گندگی کے ڈھیروں سے۔ اس 14 اگست پہ آپ اپنے اپنے حصے کا پودا لگائیں۔ پنجاب حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے تینوں تحصیلوں میں جشن آزادی کی تقریبات کے دوران شہریوں میں مفت پودے تقسیم کیے جائیں گے تاکہ سرسبز و شاداب پاکستان کا خواب جلد شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ ہم نے بچوں کو جو ہے اسپیشلی ٹری پلانٹیشن کی طرف مائل کرنے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ بچے جو ہیں اس پاکستان کو سرسبز بنانے میں پودا لگائیں بھی اور اس کی حفاظت کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کو بھی پتا چلے گا کہ پاکستان کتنی مشکلات سے بنا ہے۔ شجرکاری مہم کے دوران ضلع کے تمام تعلیمی اداروں، دفاتر، شاہراہوں اور عوامی مقامات پر بھی نئے پودے لگائے جا رہے ہیں۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی پاک پتن کی جانب سے بھی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے عباس علی عارفی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر وطن عزیز کو سرسبز و شاداب بنانے اور ماحولیاتی و موسمیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے CO ایجوکیشن اتھارٹی ڈسٹرکٹ پاک پتن میڈم شازیہ رفیق نے ضلع پاک پتن کے ایک نجی اسکول میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔
CM पंजाब के इनिशिएटिव के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम 2 लाख पौधों का हदफ मुकर्रर किया गया है कि वो तमाम मुख्तलिफ स्कूल्स में लगाए जाएंगे। इस साल हमारा हदफ है कि इंशाल्लाह हम 2 लाख से ज़ायद पौधे लगाएंगे जो कि तमाम प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूलों में भी लगेंगे। दरख्त लगाएं, वक्त जगाएं। इस मरतबा एक खास इनिशिएटिव लिया गया है कि ना सिर्फ पौधे लगाए जाएंगे बल्कि इंशाल्लाह उन्हें परवान भी चढ़ाया जाएगा। हुकूमत पंजाब की इस शजरकारी मुहिम में सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स भी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। हम तमाम प्राइवेट स्कूल 1 लाख से ज्यादा जो है वो अपने स्कूलों में पौधे लगाएंगे और इनकी हिफाजत भी करेंगे। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात और खतरात को कम करने के लिए शजरकारी इंतहाई नागुज़ीर है। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाकर ही हम आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को साफ और महफूज बना सकते हैं। दरख्त लगाना सुन्नत नबवी भी है और सदका जारिया भी। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। नाज़रीन, पंजाब भर की तरह पिंडी घेप में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। आसिफ साबरी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज के अहकामात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी गेब हाफिज मोहम्मद जुनैर यूनुस की जानिब से जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिला में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंडी गेब में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस मौका पर उन्होंने सरसब्ज़ पाकिस्तान के विजन को फरोग देते हुए मुतअद्दिद पौधे शुरका में तकसीम किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने। में ना सिर्फ THQ हॉस्पिटल बल्कि पिंडी गेब के बाकी इलाकों में भी और बाकी जगहों पे भी इस तरह की शजरकारी की मुहिमात जो हैं उनको जारी और सारी रखा जाएगा। सब लोगों से गुजारिश है कि अपने लेवल पर भी शजरकारी कर सकते हैं, ज़रूर करें। जो क्लाइमेट चेंज जो हमारी इस पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है, मोस्टली पाकिस्तान को, की मिटिगेशन के लिए हमें चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और इसी चीज़ को या इसी शऊर को उजागर करने के लिए आज हमने THQ से इस मुहिम का आगाज़ किया है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर और शुरका ने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआ भी की। आसिफ साबरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पिंडी गेब। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे से ही मतला अब्रलूद है। मौसम की मजीद सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मौसमुद्दीन से। जी मौसम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में आज सुबह से ही आसमान में काले बादल मौजूद हैं और शहर में सुबह से ही हवाएं चल रही हैं। शहर के दर्जे हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 27 रहने की पेशेनगोई की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब 65% है, जिसकी वजह से हब्स की कैफियत बरकरार है। शहर के कुछ मुकामात के ऊपर आज सुबह हल्की और तेज़ बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। PTM पंजाब के मुताबिक मानसून सिस्टम में मगरबी हवाएँ जो हैं वो शामिल होने जा रही हैं, जिसके बाद एक छठा स्पेल जो है मानसून बारिशों का वो शुरू हो रहा है कल से, और इसके चलते हुए लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और रावलपिंडी के अंदर अर्बन फ्लडिंग के वार्निंग जो है वो जारी की गई है। उसके अलावा जो नदी नाले हैं उनके अंदर तुगयानी और फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी की है कि तमाम तर जो इंतज़ामिया है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहे, फील्ड में मौजूद रहे। दरियाओं की सूरत हाल की बात की जाए तो दरियाए सिंध और चेनाब में कुछ मुकामात के ऊपर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए जेलम, रावी और सतलुज में पानी का जो बहाव है मामूल के मुताबिक है। मानसून बारिशों का छठा स्पेल जो है वो कल से शुरू होने जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी लाहौर के कुछ मुकामात के ऊपर मजीद बारिश जो है मुतवक्को है। जी बहुत शुक्रिया मौसमुद्दीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मानसून के बारिशों के 5वें स्पेल के बाद दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ इस वक्त दरियाए रावी पर माड़ी पतन के मकाम पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे देते हैं। अशरफ, बताइएगा इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है? दरियाए रावी में बलोकी के मुकाम पर पानी की आमद 44,685 क्यूसक और अखराज 20,685 क्यूसक है। दरियाए सतलुज में सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 20,745 क्यूसक और अखराज 15,028 क्यूसक है। और जिस मुकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर पानी का बहाव 22,000 क्यूसक है। पंजाब के बेशतर अजला में मानसून की बारिशों के 5वें स्पेल के बाद दोनों दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। PDMA की तरफ से पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी करने के बाद दरियाए रावी और सतलुज में पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने का खदशा है। उकाड़ा की ज़िलाई इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए
तमाम तार इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। दोनों दरिया इस वक्त अपने मामूल के मुताबिक बह रहे हैं और कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो रेस्क्यू हमा वक्त तैयार खड़ी है। दोनों दरियाओं के पार्ट में रहायश पजीर लोगों को उनके माल मवेशी समेत महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਮਕਬੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। लिहाजा सानू रेस्क्यू वाला एक मकबूल जगह पर मुंतकिल कर सकते। 50 किलोमीटर तवील उकाड़ा की हदूद से गुजरने वाले दरिया सतलुज और दरिया रावी के हिफाजती पुश्तों की भी मुसलसल निगरानी की जा रही है। शहरी किसी भी एमरजेंसी की सूरत में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, ओकाड़ा। और अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहां आज भी मतला अबरआलूद है। मजीद जानते हैं कराची से अपने नुमाइंदे सुहेल जमाली से। सुहेल, तफसीलन आगाह कीजिएगा। कराची में आज भी मतला अबरआलूद है। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताहम हवा में नमी का तनासुब 65% से ज़ायद होने के बाइस गर्मी की शिद्दत 34 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। इस वक्त जुनूब मगरिब से समंदरी हवाएं 15 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं। हद निगाह 4 किलोमीटर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 68 है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची डिवीज़न में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। साथ ही महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि सिंध के साहिली अजला ठट्टा, बदीन, सजावल और सहराई ज़िले थरपारकर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और वहाँ भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया। मुनासिब मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से गजा पर काबिज़ इजरायली फोर्सेस के हमलों में मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर इजरायली फौजियों की फायरिंग से 38 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हुए। बैनुल-अक़वामी इदारों से मुसलसल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की अपीलों के बावजूद गजा में इंसानी अलमिया भी मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत ने लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। गजा में फाका कशी से मजीद 7 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए हैं। मगरबी किनारे के इलाके नाबलुस में काबिज़ फौज की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद और 7 जख्मी हो गए। तुर्की के रास्ते अज़रबैजान से शाम को कुदरती गैस की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह हो गया है। अज़रबैजान से कुदरती गैस आज से तुर्की के रास्ते शाम पहुंचना शुरू हो गई है। तुर्की के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये पेशरफ्त शाम की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मदद देगी। तुर्क वज़ीर तवानाई ने जनूबी सरहदी सूबे क़िलिस में गैस पाइपलाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इस मौके को तारीखी लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे की सरपरस्ती कतर भी कर रहा है। पाइपलाइन के जरिए रोज़ाना 60 लाख मकब मीटर आज़री गैस शाम पहुँचेगी। शामी वज़ीर तवानाई ने तकरीब में शिरकत करते हुए उसे शाम की तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ की समत एक स्ट्रेटेजिक कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि ये पाइपलाइन बिजली की फराहमी बेहतर बनाने में मुआविन साबित होगी, जो मईशत और अवामी ज़िंदगी पर मुस्बत असर डालेगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए टांक में DPO दफ्तर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मजीद बताएंगे जाफरान मियानी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी हो के दीगर बदअमनी, ये फोर्स हमेशा सीसा पिलाई दीवार की मानंद रही, खुद कुर्बान हुए मगर मादर वतन पर आंच न आने दी। जिला टांग में हफ्ता शहदा पुलिस के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस दफ्तर टांग से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में पुलिस अफसरान, जिली इंतजामिया और सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। जो में शहदा मनाया जाता है, ये इस सिलसिले में आज वॉक का इंतज़ाम किया गया है। बेसिकली ये एक पैगाम है कि हमारे जो शहदा हैं कि जिन्होंने इस धरती की खातिर अपनी जान जान फरीन के हवाले की है, तो हम उसके साथ हैं और उसकी याद दहानी के लिए आज हमने ये वॉक किया है। इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि ये एक याद दहानी है कि कौम इनकी कुर्बानियों को भूली नहीं है। कौम आज भी उनकी कुर्बानियों को याद करती है, उन पर फख्र करती है। हफ्ता शहदा पुलिस का मकसद पुलिस जवानों को मुल्क की खातिर लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने समेत उन पर यह बात अश्कारा करनी है कि कौम आपकी कुर्बानियों को भूली नहीं बल्कि हमेशा याद रखेगी। जाफरान मियानी, PTV न्यूज़, टांग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर आवाम की सहूलत के लिए सूबे भर में पैदाइश और अमवात रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 का निफाज करते हुए पैदाइश और अमवात की रजिस्ट्रेशन और कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट के इजरा पर फीस के खात्मे के बाद आवाम में आगाही के लिए मुहिम जारी है। इस सिलसिले में महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट शेखपुरा के ज़रिए तमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। मोहम्मद इस्लाम गाजी की रिपोर्ट देखिए।
2021 के कवानीन के तहत शहरियों को पैदाइश और अमवात के बर वक्त अंदराज के लिए न सिर्फ अदालती डिग्री का हसूल लाजमी था बल्कि 5,000 तक फीस भी अदा करना पड़ती थी, मगर मौजूदा हुकूमत ने अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए 2021 के कवानीन में तरमीम करके 2025 के तरमीमी कवानीन का नफाज किया, बल्कि 7 साल तक पैदाइश और वफात के अंदराज और कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट के हसूल पर अदालती डिग्री की शर्त और फीस भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी। बर्थ रजिस्ट्रेशन अगर 7 साल तक नहीं होती थी तो कोर्ट डिग्री जो है वो लेनी पड़ती थी। अभी जो कोर्ट डिग्री है बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए वो खत्म हो गई है। मरीम नवाज साहिबा की काविश के बाद और उनकी डायरेक्शंस के बाद जो हमारे न्यू डेथ बर्थ रूल्स बने हैं 2025 उसमें ये माफ़ हो गई है। अब जो है ना कोई फीस नहीं रिक्वायर, आप जब नॉर्मल अंदराज करवाते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है। कबल पैदाइश और वफात के अंदराज के लिए ब्लड रिलेशन के रिश्तेदार की मौजूदगी जरूरी थी, मगर मौजूदा कवानीन के तहत अब दीगर रिश्तेदार भी पैदाइश वफात का अंदराज और सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। पैदाइश वफात के अंदराज सर्टिफिकेट के हसूल और नए कवानीन से आगाही के लिए जिला कौंसिल शेखुपुरा में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए DC शेखुपुरा शाह इमरान मार और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों की पैदाइश और किसी अजीज की वफात की सूरत में उसका अंदराज बर वक्त यकीनी बनाएं ताकि शहरियों को तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए मुस्तकबल में बेहतर मनसूबाबंदी हो सके। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जिला बिहाड़ी में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दायरा कार को तीनों तहसीलों तक बढ़ा दिया गया है। पहले मरहले में 3,15,000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा चुकी हैं। तफसील बताएंगे बिहाड़ी से बहादुर हुसैन। जिला बिहाड़ी में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दायरा कार को तीनों तहसीलों विहाड़ी, मेलसी और बोरे वाले तक बढ़ा दिया गया है। जिला भर में लोगों को उनकी घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जिला बिहाड़ी को 22 गाड़ियां फराहम की गई हैं जिनके जरिए डॉक्टर्स, डिस्पेंसर, LHVs और दीगर अमला मुख्तलिफ इलाकों में जाकर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, जिसकी महकमा सेहत बिहाड़ी की जानिब से मुसलसल निगरानी भी की जा रही है। 22 कैंप्स हैं और हमारी टीम्स घर घर जाकर अर्बन स्लम एरिया में जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो THQ, DHQs पे नहीं जा सकते, उनको घरों में जाकर रेफरल भेजकर LHWs के ज़रिए उनका मुआयना किया जाता है। क्लिनिक ऑन व्हील के तहत मैदा, शुगर, ब्लड प्रेशर समेत दीगर बीमारियों की मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। फैमिली प्लानिंग, हिफाजती टीकाजात के साथ साथ बच्चों को न्यूट्रिशन भी फराहम की जा रही है। पहले मरहले में क्लिनिक ऑन व्हील के तहत तहसील बिहाड़ी के 3,15,000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा चुकी हैं। अब तक दूसरे मरहले में 20,000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा भी किया जा चुका है। क्लिनिक ऑन व्हील के तहत लाखों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इस इनकलाबी मनसूबा को अवाम की जानिब से न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि इसे मिसाली मनसूबा भी करार दिया जा रहा है। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बिहाड़ी। जी, पाकिस्तान और ईरान के करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दावत पर वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। कल शाम को वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं जहाँ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद जो है आज वो इस्लामाबाद में मसरूफ़ तरीन दिन गुजार रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं जहाँ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। इसके बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरान के सदर की 1-on-1 मुलाकात है। मुलाकात के बाद जो है वो MOUs साइन होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में जो है वो ताउन के हवाले से मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। फिर एक जॉइंट प्रेस स्टेक आउट होगा। उसके बाद जो है आज ईरान के सदर आज शाम को सदर आसिफ अली ज़रदारी से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे और उन्हें इशाइया भी दिया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को देखा जाए तो कई दहाइयों पर मुहित हैं। ये ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद मजबूत होते जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान वफूद के तबादले भी होते हैं। मुख्तलिफ शोबों में आलमी फोरम
پر دونوں ممالک ایک دوسرے کے مشترکہ مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جو حالیہ بھارتی کشیدگی تھی اس میں ایران نے پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر حمایت کی، اور پاکستان نے بھی ایران اسرائیل کشیدگی میں جو ہے ایران کی حمایت کی تھی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے حوالے سے جو ہے وہ ایران کے صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ دورہ جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ دوستی اور یہ تعلقات کا فروغ اور اس طرح سے ایک دوسرے کی حمایت دونوں ملکوں کے درمیان بہترین دیرینہ برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ جی بہت شکریہ مظہر عباس، آپ کا تفصیلاً ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورے پر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج وہ ایک مصروف دن گزاریں گے۔ صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامے کا وقت ختم ہوا۔ ہمیں ہماری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔